So hello everyone, welcome to Target Academy, and today we are going to interact about the syllabus that I have been recently shared for the ASTU Mechanical third semester syllabus. And quite frankly, I'm speaking, this has been very kind of a shock for me to see the syllabus because एक और syllabus और ईमान खिनी subjects for an odd semester and for second year students, typical, very typical, cannot be seen in I have not seen such syllabus in a long time, or basically the kind of trouble it might bring to the students, provided that quality of learning is there in the colleges of Assam. I don't think people will be very much comfortable with whatever has been designed for all of you guys. Okay, so let's put some light on the syllabus, and थोड़ा सा syllabus का strategy को हम लोग पढ़ते हैं guys. Let us see this, and I'll also tell you about how will you guys cope up with this. And without a proper strategy, this entire syllabus of third semester mechanical of ASTU would be difficult thing to proceed with. A new education policy, after this new education policy was absorbed in the Assam government education department, so many things have been changed. But yes, without wasting any time, let's put a light on the entire syllabus out here. This is the syllabus. I don't know whether, Kanjan, you have any idea whether this is tentative or permanent? No such idea, I guess. ছাৰ মই মানে আমাৰ কলেজৰ টিচাৰক সুধিছিলোঁ, তো কৈছে যে আজটোত জলদি আপলোড কৰি দিব, এইটোৱে হয়, কিন্তু এতিয়ালৈ আজটোত আপলোড কৰা নাই যদিও জলদি আপলোড কৰি দিব আজটোৱে। Acha, ঠিক আছে. So since you got it from the one of the sources, basically from the college itself. So these are the subjects for you guys: basic thermodynamics, theory of machines, machine tools and metal cutting, mechanics of materials, and maths 3. These are very important. ये जो पांच जो टॉपिक है, जनरली थर्ड सेमेस्टर में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग 5 टॉपिक्स, 5 सब्जेक्ट्स, ब्रॉड सब्जेक्ट्स. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग दिस. ठीक है गाइस, तो मैं अभी एक बार कैमरा बंद कर लेता हूँ बिकॉज आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन. एंड यस, so there is no point in having 5 subjects, and above the 5 subjects again one Indian knowledge systems, programming in Python, laboratory, but machines of social internship, and language other than MIL. I don't know क्या है यहाँ पे. How much this will be guys? किसी का Indian knowledge systems, ठीक है, ये आपका 2 credits, around 30 lectures आएगा इसमें. ये तो लेबोरेटरी है, बाकी क्रेडिट सिस्टम. ठीक है, फाइन. तो आपके पास यहाँ पे इसमें देख लो तो कितना क्रेडिट्स हो गया. 1 2 3 3 4 12 16 credits for 5 topics, and this is massive guys. This is extremely massive. अब किस लिए मैसिव बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले का जो टॉपिक्स थे उसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स था, थ्योरी ऑफ मशीन्स था, मैथ्स 3 था, इतने था. बट ये जो मशीन टूल एंड मेटल कटिंग जो आ रहा है, दिस इज इन प्रीवियस आस्टो syllabus. This was the topic included in 6th semester for mechanical. 6th semester में था. Last semester में मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है इस 6th semester के एग्जाम के लिए, मशीन टूल एंड मेटल कटिंग and mechanics of material. This was included in 4th semester ASTU syllabus. बट हाँ, 4th semester ASTU syllabus से थोड़ा सा easy किया हुआ है, बिकॉज 4th semester का जो ASTU syllabus में पहले वाला ओल्ड syllabus जो था उसमें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल थोड़ा टफ था. टफ क्यों था? बिकॉज दैट पर्टिकुलर टॉपिक वाज आल्सो नॉट डिजाइन प्रॉपर्ली. उन्होंने क्या किया था, पहले का सिस्टम में क्या था कि सिंपल स्ट्रेस से स्टार्ट करना चाहिए, वहां पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस से स्टार्ट किया था. बट आई एम हैप्पी टू सी दैट आप लोग का जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो टॉपिक है इस सेमेस्टर का, दे हैव रीडिजाइंड इट एंड मेड इट अ बिट अप्रोचेबल. ठीक है, पहले जैसा नहीं है, पहले ओल्ड सेमेस्टर सिलेबस जैसा नहीं है. बट यहाँ पे क्या है कि यू गाइज are going to deal with 5 major things. 5 major things, yes. 1 2 3 4 5. अब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं. तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, Kanjan and Maya, you guys must have studied about this. See, system and its classification. फिर थर्मोडायनेमिक्स पहला है, इसमें 6 या 7 चैप्टर है. 7, yes.
एंड ऑल ऑफ दिस आर मैसिव, हाँ सब मैसिव है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें यू विल गेट एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। सब में से इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बनेगा, सबका न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होगा, एंड दिस एंटायर टॉपिक thermodynamics would be entirely numerical based, मतलब a lot of numericals are to be dealt with basically in this particular topic. The concept of thermodynamics, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन, माया एंड कंचन, आई हैव टॉट दिस राइट रिसेंटली, है ना। देन यस सर। वी हैव डन थर्मोडायनेमिक स्टेट, क्या होता है स्टेट, फिर ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्टीज, वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस, साइकिल्स के बारे में अभी बात नहीं किया हम लोगों ने, फिर एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में बात किया था हम लोगों ने कि वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, ये मैंने आप लोग को बताया। फिर अभी फर्स्ट लॉ पे हम लोग जाएंगे, बेसिकली हम लोग फर्स्ट लॉ पे जाएंगे और कुछ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बात करेंगे। So basically, whatever we learned here in the introduction, we apply in first law. First law का whatever the drawbacks are there in the first law, we will apply it in second law. We will study second law in relation with the first law कि first law क्या नहीं कर पाता है जिसकी वजह से second law आया। फिर this topic is extremely important. ये italics में लिखा भी हुआ है, इसलिए I don't know why, but this is something which is this entropy and exergy. आधा से ज्यादा स्टूडेंटों को मैकेनिकल का समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समझ में नहीं आएगा क्या होगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, ये एंट्रोपी एंड एक्सर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड स्टीम एंड वेपर साइकिल, ये जनरली बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग को नहीं देना चाहिए था आस्तु को, बट आई डोंट नो व्हाट डू दे प्ले विथ एंड व्हाट डू दे थिंक अबाउट कि स्टीम एंड वेपर साइकिल को बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में क्यों देना। दिस इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में ही करते हैं, विच इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग। यहाँ पे दे दिया आपको तो थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग खराब होगा भी, चलो ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्टीम टेबल्स देखना पड़ेगा आप लोगों को, यूज ऑफ स्टीम टेबल्स, ये सब चीज फिफ्थ सेमेस्टर का है, सिक्स सेमेस्टर का है, ये सब चीज आप लोग को बाद में पढ़ना चाहिए, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए था। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स आई सी इन आस्तु, दे डू नॉट डिजाइन इट प्रॉपर्ली, आप लोग के ऊपर लोड आएगा, बट दे दिया तो पढ़ना पड़ेगा, लेट अस सी। अब इसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, देखो सेंजल एंड बोल्स, आर के राजपूत का 2 बुक है जो आप लोग को दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे आर के राजपूत के बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका आएगा आस्तु के एंड सेमेस्टर में। दिस इज समथिंग विच इज क्वेश्चन बेस्ड, इसको बुक मानते हैं जहां से न्यूमेरिकल्स को उठा के डायरेक्टली दे दिया जाता है। सेंजल एंड बोल्स जो है एक ऐसा ऐसा ये है, ऐसा बुक है जो आप लोगों को बहुत मैंने स्मार्ट बनाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, सेंजल एंड बोल्स, और ये दोनों बुक मेरे पास है, ये दोनों बुक ई बुक्स के फॉर्म में मेरे पास है, जो आप लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उसको आपको मिल जाएगा, जैसे कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ये रहा आर के राजपूत, बुकमार्क्स के साथ है गाइस आई गेस, हाँ बुकमार्क्स के साथ है, द बेस्ट पार्ट इज विद बुकमार्क्स। तो आप कभी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल्स में जाना चाहोगे तो आप जा सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चंस, यहाँ पे न्यूमेरिक आपको मिल जाएगा गाइस, न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग इज देयर। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अब हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ, और मैं आपको ये भी दूंगा, असाइनमेंट्स भी दूंगा इस बार, ठीक है, तो ये करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपको एंड सेमेस्टर में एज वेल एज फॉर गेट ऑल्सो बहुत सुविधा हो जाएगा। यहीं से उठा उठा के क्वेश्चन दिया जाता है गेट में भी, मैं आपको सब सॉल्व करके दिखाऊंगा, गेट का भी क्वेश्चन, पीएसयू का क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन, सारे के बीच में लिंक बताऊंगा, और आपके दिमाग से जो डर है, जो आप लोग का फियर है कि हम लोग सिर्फ सीजीपीए लेके अच्छा करेंगे, पॉसिबल नहीं है आजकल के ज़माना में, आपको कम्पिटेटिव एग्जाम देना पड़ेगा guys, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो प्लीज पे अटेंशन। ये तो आर के राजपूत का बुक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ई बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। नाउ देर इज वन मोर थिंग, सेंजल एंड बोल्स का मैंने बोला ना, थर्मोडायनेमिक्स बाय सेंजल एंड बोल्स, तो वो भी है, देखो थर्मोडायनेमिक्स बाय सेंजल एंड बोल्स, इसका अगर आप ओरिजिनल वर्जन इंडिया में खरीदने जाते हो, सेंजल एंड बोल्स, ये भी बुक मार्क्स के साथ है, तो अगर आप इसको खरीदने जाते हो तो फिर आपका दिस पार्ट, ये देखो बहुत अच्छे से समझ, ये आपको 8,000 9,000 में मिलेगा, बट दिस थिंग विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, सब किसी के लिए रहेगा, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा 100%।
अब थर्मोडायनेमिक्स को डील करने के लिए हमारे पास क्या है, खंजन एंड माया, आप लोग एक काम करना, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी लोग आप लोग भी देखो क्योंकि देखना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हम लोग अप्रोच क्या ले रहे हैं। अब देखो माया, आप लोग को सारा मिल गया था, क्लास कोर्स मिल गया था खंजन, ऑल ऑफ यू? Yes, यस sir. सर। सो इफ यू गो टू इनटू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो जब, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले ई बुक्स मिल जाएगा, देख लो। तो आर के राजपूत का बुक यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है, आर के राजपूत का बुक यहाँ पे अपलोडेड है, पीके नाग का भी बुक अपलोडेड होगा, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय पीके नाग, ये भी अपलोडेड है। पीके नाग भी आप लोगों को सजेस्टेड बुक है, देख लो, पीके नाग, दिस इज ऑल्सो डन। तो ये भी आप लोग के लिए अपलोडेड है गाइस, पीके नाग, ठीक है। तो पीके नाग स्टीम टेबल भी अपलोडेड है आप लोग का। हाँ, आर के राजपूत यहाँ पे सेंजल एंड बोल्स अभी अपलोड नहीं किया हुआ है, कर दूंगा। फिर उसके बाद ये टॉपिक ही पूरा थर्ड सेमेस्टर से किया हुआ है, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय थर्ड सेमेस्टर। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स जो आप लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो यहाँ है, यानी कि द मॉड्यूल 1, मॉड्यूल बोल दो या चैप्टर्स बोल दो, यूनिट्स बोल दो, आप लोग को यूनिट्स के हिसाब से दिया हुआ है मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 आप लोग यहाँ से देखना शुरू कर दो आज से, माया एंड कंजन आप लोग यहाँ से देखना शुरू कर दो, ठीक है, बेसिक्स एंड ज़ेरोथ लॉ एंड एवरीथिंग। फिर आपका मॉड्यूल 2 आएगा, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम भी है, देख लो। तो कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू नॉन फ्लो यानी कि क्लोज सिस्टम एज वेल एज फ्लो प्रोसेसेस यानी कि ओपन सिस्टम। कंसेप्ट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी स्पेसिफिकेट, पीएमएम 1, एनर्जी इक्वेशंस फॉर फ्लो सिस्टम्स। अब आपको फ्लो सिस्टम मतलब ओपन सिस्टम, वहाँ पे एस एफ डबल ई, बॉयलर, टर्बाइन एंड हीट एक्सचेंजर, पंप्स, नोजल, सबके लिए एस एफ डबल ई लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको पता चलेगा और मैं आपको दिखाते भी जा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। तो फर्स्ट लॉ का लेक्चर का नोट्स देख लो, एक एक वीडियो करके नोट्स बनाया हुआ है, मैं आपको कंपाइल करके पूरा एक साथ बना दूंगा। तो दिस इज फर्स्ट लॉ। यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर आप लोग को यूनिवर्सिटी का या फिर कोई भी गेट का, यूनिवर्सिटी का और कहीं का भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपको दूसरा मिल जाए, इस जो भी चीज मैंने लिखा है उससे बाहर मिल जाए, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा फिर। तो यह हुआ फर्स्ट लॉ का पहला लेक्चर। दूसरा लेक्चर में मैंने 9 पेजेस का नोट्स है, इसमें मैंने आप लोगों को इंटरनल एनर्जी, पीएमएम 1 क्या होता है ये सब समझाया है। फिर आपको एंथैल्पी क्या होता है, फिर उसके बाद देखो टरबाइन, ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम को हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ को लगाया गया। फिर यहाँ से डेरिवेशंस कुछ किया गया, दिस डेरिवेशंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट गाइस, ठीक है। तो एंड ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम, उसके बाद हम लोगों ने ओपन सिस्टम एनालिसिस, फ्लो प्रोसेसेस। तो फ्लो प्रोसेसेस में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, दिस इज आल्सो डन। तो टरबाइन, स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस, फ्लो सिस्टम्स बोला गया। तो नोजल क्या होता है उसके बाद हम लोग ऐसे करके इक्वेशन लिखते हैं, सारा डेरिवेशन किया हुआ है, एवरीथिंग इज डन। जो एग्जाम में पूछेगा आपसे वो सारा कुछ यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ से एस एफ डबल ई का एक नोट्स, फिर ओपन सिस्टम एनालिसिस का दूसरा नोट्स, ये 16 पेजेस का यहाँ से हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद एस एफ डब्ल्यू अप्लाई टू वेरियस डिवाइसेस, नोजल एंड डिफ्यूजर, देख लो आप लोग को यहाँ पे लिखा है नोजल्स, पंप्स, हीट एक्सचेंजर, टरबाइन एंड बॉयलर सबका है। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है गाइस, नोजल एंड डिफ्यूजर, फिर आएगा टरबाइन एंड कंप्रेसर, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व है, टरबाइन एंड कंप्रेसर सारा कुछ किया हुआ है भाई। तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व है, वेल्व्स के ऊपर है, ठीक है, किया हुआ है। फिर हीट एक्सचेंजर्स भी होगा, जो बॉयलर्स जिसको बोल रहे हैं हीट एक्सचेंजर्स, ये भी किया हुआ है, फाइन। अनस्टेडी फ्लो प्रोसेसेस क्या ये नहीं है आप लोग का सिलेबस में, नहीं करेंगे इसको, बाद में देखा जाएगा। तो ये हुआ आपका ओपन सिस्टम। फिर आपका आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मॉड्यूल 3, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी देख लो, ये सारा कुछ किया हुआ है, रिवर्स साइकिल्स, कार्नोट पंप, सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल आउट हियर। तो ये रहा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से वीडियोस, सेकंड लॉ का पीडीएफ, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना गाइस, शेयर मत करना किसी के साथ प्लीज। दिस इज समथिंग विच इज आई हैव डन इट बाय अ लॉट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, बहुत मैंने मेहनत करके लिखा है सब कुछ। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से नोट्स मिल जाएगा। ये तो मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने लॉकडाउन में पढ़ाया था सब कुछ लिख के। उसके बाद तो नोट्स आपको फिर एंट्रोपी आ जाएगा,
फिर एंट्रोपी के बाद अवेलेबल एनर्जी जिसको एक्सर्जी एनालिसिस बोलते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस होगा, खत्म। तो आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स का लाइव लेक्चर्स भी है जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं। फर्स्ट लॉ का लाइव न्यूमेरिकल्स, लाइव थर्मोडायनेमिक न्यूमेरिकल्स, खाली न्यूमेरिकल्स ही है सब में, लाइव क्लासेस में, सेक्शन 4 में। और उसमें आपको एक और चीज पढ़ना है जिसका नाम है यहाँ पे देयर इज स्टीम एंड वेपर साइकिल। ये भी भाई करवाया गया है जो कि आपको पावर प्लांट में मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो जस्ट तो यहाँ पे मशीन डिजाइन के नीचे आओगे, क्योंकि ये 6 सेमेस्टर का टॉपिक है इसलिए मैंने नीचे रखा है, बट आप लोग को अभी दे दिया 3rd सेमेस्टर में, क्या बोलूँ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आईसी इंजन, उसके बाद एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में स्टीम साइकिल, ये रैंकाइन साइकिल एंड ऑल। इसका भी नोट्स आपको पूरा अच्छे से दिया हुआ है, कैसे रैंकाइन साइकिल का, कैसे रैंकाइन साइकिल या फिर स्टीम पावर साइकिल का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सारा कुछ है। एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग हैज बीन डन, रिटन एंड डिस्क्राइब प्रॉपरली, सब कुछ किया हुआ है, सारा कुछ A to Z। न्यूमेरिकल्स के साथ आर के राजपूत का न्यूमेरिकल, गेट का न्यूमेरिकल, सारा कुछ सॉल्व है, सारा सॉल्व है, एवरीथिंग इज देयर। मेथड्स टू इम्प्रूव रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी आपका सिलेबस में है, देखो। हाँ, मेथड्स टू इम्प्रूव रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी मैंने जो चीज पढ़ा दिया वो आप लोग के सिलेबस में डायरेक्टली, तो एवरीथिंग इज डन हियर। तो आप लोगों को क्या करना है, कैसे पढ़ना है गाइस, संजन एंड माया आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे। ई बुक्स के बाद लाइव क्लासेस है, फिर थर्मोडायनेमिक्स में। पहले आप स्टार्ट यहाँ से कर दो, मैं आप लोग को टास्क दे दूंगा आज डिजाइन करके, ये इसे ऐसे फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है संजन माया, गॉट माय पॉइंट। ओके सर। फिर आता है Yes, आप sir. फिर आता है आप लोग का यहाँ पे दूसरा टॉपिक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं दावा के साथ बोल सकता आई कैन से दैट वेरी लेस पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द टॉपिक्स आउट हियर, जो कि वेलोसिटी एनालिसिस और ये सब है। जैसे कि पहला ही टॉपिक, पहला मॉड्यूल समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फिर आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेरिवेशन क्या होता है, जैसे कि कर्ट्जबैक क्राइटेरियन, मोबिलिटी क्राइटेरियन फॉर पार्शियल एंड स्पेशल, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है अगर अच्छा से नहीं पढ़ाया गया तो। एंड दिस इज द पहला मॉड्यूल जो है थ्योरी ऑफ मशीन्स का, दिस इज वन ऑफ द मॉड्यूल विच इज वेरी वेरी टिपिकल एंड क्रिटिकल गाइस। इसका भी बुक आप लोगों को सजेस्ट किया हुआ गया है, मैं बता देता हूँ। एक आर के बंसल है, एस एस रतन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ई बुक्स है, आर एस खुरमी भी है, थ्योरी ऑफ मशीन्स आर एस रतन भी है, दोनों है मेरे पास, बोथ द बुक्स आर देयर विद मी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स ये जो बुक है आपका यहाँ का, इसी से सारा कुछ आता है, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। सो मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म्स पहला टॉपिक जो पढ़ना है आप लोग को, तो यहाँ से आपको सिंपल मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जस्ट ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये चीज, जो भी चीज मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, एवरीथिंग हैज बीन डन एंड सॉल्व्ड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस यहाँ पे। और थर्मोडायनेमिक्स के बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स आएगा, मटेरियल साइंस, फिर थ्योरी ऑफ मशीन्स आएगा। थ्योरी ऑफ मशीन्स पहला मॉड्यूल सिंपल मैकेनिज्म्स, पहला मॉड्यूल है आपका सिंपल मैकेनिज्म्स, प्ले अटेंशन गाइस। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिज्म्स, इसी में सिंपल मैकेनिज्म का डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक जॉइंट्स, लिंक्स, पेयर, काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म, डिफरेंट इन्वर्जन्स ऑफ 4 बार, याद रखना गाइस, हाँ क्या क्या चीजें, सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, टेस्ट फॉर 4 बार, ग्रासॉफ्स लॉ, ये सब अभी नाम सुन रहे हैं, मैं बता दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, व्हाट वी हैव है, तो सिंपल मैकेनिज्म्स का वीडियोस है, और सिंपल मैकेनिज्म्स का, मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स का नोट्स है। देखो कितना पेज का होगा, 25 पेज का नोट्स। तो मशीन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, काइनेमेटिक लिंक क्या है, टाइप्स ऑफ लिंक क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ये इसमें मैंने एनिमेशंस के थ्रू से भी समझाया बहुत सारा। टाइप्स ऑफ पेयर, अलग अलग टाइप ऑफ पेयर के बारे में समझाया, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक चेन, 4 बार चेन के बारे में होगा, देखो 4 बार लिंकेज, 4 बार लिंकेज के बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन चेन पढ़ा दिया, मैकेनिज्म क्या होता है, इक्विवेलेंट मैकेनिज्म क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है। आपको कर्ट्जबैक क्राइटेरियन था, दिखाता हूँ कहाँ पे कर्ट्जबैक क्राइटेरियन,
सो दिस इज कर्ट्ज़बर्ग क्राइटेरियन इक्वेशन। ठीक, उसके बाद नीचे जाओगे और 4 बार चेन, तो ग्रासॉफ्स लॉ यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो ग्रासॉफ्स लॉ का इन्वर्जन्स क्या होता है पढ़ाया हुआ है, किस तरह का होता है ट्रांसमिशन एंगल एंड एवरीथिंग, सारा कुछ दिया हुआ है। एवरी सिंगल थिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल्स आर गिवन। आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। तो मैं आप लोग को स्ट्रेटेजी बना के दूंगा पढ़ना कैसे है। थ्योरी ऑफ मशीन्स को भी स्टार्ट करेंगे गाइस साइड बाय साइड, इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल, फिर आता है फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन ड्राइव्स, बेल्ट एंड रोप ड्राइव, बेल्ट एंड रोप ड्राइव है। ठीक है, ब्रेक्स, ये सब के बारे में सब कुछ दे दिया। ये सब चीज जो है ब्रेक्स एंड ऑल, ये सब पहले मशीन डिजाइन में 5th सेमेस्टर में आता था, इस बार दिया हुआ है आप लोग को। चलो ठीक है, ये सारा कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। गियर एंड गियर ट्रेन्स भी है, कैम एंड फॉलोअर भी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसको मैं आप लोग को बहुत इजी करके पढ़ाऊंगा गाइस, नहीं तो ये कॉलेज में समझ में नहीं आता है किसी को। तो देखो, गियर एंड गियर ट्रेन्स, कैम एंड फॉलोअर एंड फ्लाईव्हील एंड टर्निंग मोमेंट डायग्राम, तो दिखा देता हूँ आपको। ये रहा। तो आपका आ गया वेलोसिटी एनालिसिस। तो गियर एंड गियर ट्रेन्स देख लो, गियर्स, गियर ट्रेन्स यहाँ पे है, वेलोसिटी एनालिसिस है। कैम्स, टाइप्स ऑफ कैम्स एंड कैम्स का लेक्चर 3 भी यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, कैम्स इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कैम्स एंड कैम्स का एनालिसिस भी है यहाँ पे दूसरा। फिर आपको यहाँ पे गवर्नर दिया हुआ है, कैसे देखता हूँ, गवर्नर नहीं दिया हुआ, नथिंग हैज बीन मेंशन्ड अबाउट गवर्नर। ठीक है, ओके। तो गियर एंड गियर ट्रेन्स, फिर फ्लाईव्हील एंड टर्निंग मूवमेंट डायग्राम। तो फ्लाईव्हील एंड टर्निंग मूवमेंट डायग्राम के बारे में यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा फ्लाईव्हील ऊपर, जस्ट फ्लाईव्हील्स, फ्लाईव्हील और फ्लाईव्हील का न्यूमेरिकल्स भी किया हुआ है। एक्स्ट्रा जो भी चीज पढ़ाना होगा मैं आप लोगों को लाइव रिवीजन करके पढ़ा दूंगा, लाइव में रिवीजन करा के। तो बस ये रहा आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये भी खत्म है, सारा कुछ अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए, एवरीथिंग, कैम एंड एवरीथिंग। बुक्स भी मिल जाएगा, बुक्स अपलोडेड है। मेटल टूल्स एंड मेटल मशीन टूल्स एंड मेटल कटिंग, ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक दे दिया आप लोग को इस बार, और ये सबसे बड़ा टॉपिक है guys। ये आप लोगों को इतना ये मेमोराइज भी करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स भी करना पड़ेगा, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स बोला जाता है इसको। और गेट का सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ से आता है, मशीन टूल्स एंड मशीन टूल्स से। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको, लेथ वहां से भी मशीन, वहां से भी न्यूमेरिकल है, शेपर से भी न्यूमेरिकल है, ड्रिलिंग से भी न्यूमेरिकल है, मिलिंग से भी न्यूमेरिकल है, ग्राइंडिंग से भी न्यूमेरिकल है, कटिंग टूल जो है ORS सिस्टम एंड एवरीथिंग, ORS एंड ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन एंड ORS ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, ये सारा कुछ है। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक ये खाली न्यूमेरिकल ही है, इसलिए देखो 8 लेक्चर्स दिया हुआ है इसमें, कॉन्टेक्ट आवर्स 8 आवर्स में खत्म करने का। फिर आता है जिग्स एंड फिक्सर्स, ये टॉपिक तो मैं आपको बोलूंगा कि जितना जल्दी खत्म हो सके उतना ज्यादा अच्छा। ट्राई टू कंप्लीट इट इन CNC भी दे दिया इस पर आप लोग को, वेरी बहुत ज्यादा ही दे दिया इस बार आप लोग को। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये टॉपिक भी कहाँ मिलेगा आपको, ये भी दिखा देता हूँ। क्या चीज, लेथ, शेपर, प्लेनर, ये सब है ना। ठीक है, लेट्स सी। आपको धीरे धीरे नीचे जाओगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा, मशीन डिजाइन, फिर मशीन डिजाइन के बाद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लेथ, पूरा लेथ पढ़ाया हुआ है, क्या होता है लेथ ये भी देख लो। ये भी शायद 28 पेजेस का लेक्चर है और सारा कुछ समझाया हुआ है। लेथ का अलग अलग पार्ट्स के बारे में समझाया हुआ है, टेल स्टॉक क्या होता है, सारा का नोट्स लिखा हुआ है, सब कुछ है, कोई बुक की जरूरत नहीं है आपको। सारा क्वेश्चन यहाँ से आएगा आप लोग का, सारा क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन। यहाँ से आपका लेथ के बारे में पढ़ लेंगे। लेथ के बाद में आपको शेपर पढ़ना था, तो शेपर का मशीन देखो, हाइड्रोलिक शेपर, शेपर, शेपर का और भी होगा। तो कास्टिंग हो गया, फिर मेटल कटिंग, वही ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम एंड ऑल, मेटल कटिंग का नोट्स, मेटल कटिंग का फुल नोट्स प्रोवाइडेड है। ये भी अच्छा खासा पेज होगा, 29 पेजेस, यस। सारा कुछ किया हुआ है, न्यूमेरिकल से लेकर सब कुछ सॉल्व होगा, सब मिल जाएगा आपको यहाँ, एवरीथिंग विल बी सॉल्व, सब कुछ समझाया हुआ होगा। देखो ASA ORS सिस्टम, ठीक है। अर्न्स्ट मर्चेंट एनालिसिस देख लो, आप लोग का है अर्न्स्ट मर्चेंट एनालिसिस, मर्चेंट थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, मेजरमेंट ऑफ कटिंग फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ये इस बार नहीं देना चाहिए था, बट दे दिया, उपाय नहीं है, दिस इज टू बी डेल्ट विथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा, तो अर्न्स्ट मर्चेंट देखो,
मर्चेंट साइकिल, मर्चेंट थ्योरी। इसको इसको डायग्राम को ड्रॉ कैसे किया जाता है, इसका पूरा डेरिवेशन पूछेगा आपसे 10 मार्क्स का एग्जाम में। अगर डेरिवेशन पूछने का अगर अभी भी है तो पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। तो एरिया ऑफ शेयर सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपका मॉड्यूल पूरा अवेलेबल है यहाँ पे, एवरीथिंग सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। फिर आपको ग्राइंडिंग ये नहीं, मेटल कटिंग। फिर इसके बाद आपका ग्राइंडिंग है, ड्रिलिंग है, मिलिंग है, शेपिंग एंड प्लानिंग है, ठीक है। फिर आपका बाकी तो अभी नहीं पूछेगा। जिग्स एंड फिक्सचर्स है जो आप लोग का लास्ट मॉड्यूल है, देख लो। सो जिग्स एंड फिक्सचर्स का लास्ट मॉड्यूल है यहाँ पे। कैड कैम ये सब चीज, सीएनसी एंड एनसी मशीन मैं आपको पढ़ा दूंगा आराम से, ये मैं खुद पढ़ा दूंगा अच्छे से। तो जिग्स एंड फिक्सचर्स सारा कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर। यहाँ पे देख लो, तो जिग्स एंड फिक्सचर्स पूरा अवेलेबल है, जिग्स एंड फिक्सचर्स का पीडीएफ पूरा अवेलेबल। तो मैंने समझा दिया आप लोगों को अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू गाइस। फिर वर्कशॉप थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वही आस्तु का पेपर भी सॉल्व किया हुआ है गाइस आप लोग के लिए। फिर आता है आप लोग का, यहाँ पे आएगा लास्ट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक गाइस, ठीक है, और 4 क्रेडिट है, देख लो भाई, इम्पॉर्टेंट तो है। अब यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन रिलेशनशिप इलास्टिक कांस्टेंट्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के पूछेगा। फिर कंपाउंड स्ट्रेस, स्ट्रेस एज ए पॉइंट, 2D स्ट्रेस, मोर सर्कल, डिफिकल्ट टॉपिक, पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा अच्छा से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। फिर आता है बेंडिंग ऑफ बीम्स, ठीक है, ये सब चीज के बारे में, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा पढ़ने के लिए। आप लोग इसको मॉड्यूल के हिसाब से फॉलो मत करना। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन बीम्स। ये पढ़ने के मॉड्यूल 4 पढ़ने के बाद आपको मॉड्यूल 2 समझ में आएगा। नहीं तो मॉड्यूल 4 बिना पढ़े अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बेंडिंग मोमेंट निकाले कैसे हम। बेंडिंग मोमेंट निकालने का तरीका मॉड्यूल 4 में। मॉड्यूल 4 पढ़ने के बाद मॉड्यूल 2 पढ़ने के बाद मॉड्यूल 3, एंड मॉड्यूल 3 पढ़ने के बाद मॉड्यूल 5 एंड 6, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी तो मैं बना के दूंगा आप लोग को कैसे पढ़ना है, एंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा का पूरा टॉपिक ही आप लोग को पढ़ाया हुआ है। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मोर सर्कल एंड एवरीथिंग, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस, कंपाउंड स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, मोर सर्कल, इतना है। स्ट्रेन ड्रॉसेट सब कुछ है आपके पास, नहीं देखो आगे, स्ट्रेन ड्रॉसेट, मोर सर्कल, स्ट्रेन गेजेस, सब कुछ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 4 का देखेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। तो उसके बाद हम लोग चला जाएंगे, देखो एसएफडी एंड बीएमडी, मैंने बहुत डिटेल्स में पढ़ा दिया इसको, कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। फिर उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस एंड बीम्स, वही मॉड्यूल 4 के बाद मॉड्यूल 2 पे जंप करेंगे। तो मॉड्यूल 2 में बेंडिंग स्ट्रेस, फिर टॉर्सन आएगा, टॉर्सन शाफ्ट, फिर स्ट्रेन एनर्जी भी है। तो मॉड्यूल 2 के बाद मॉड्यूल 4 और पढ़ लेंगे, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी पढ़ेंगे, और उसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फिर कॉलम, थ्योरी ऑफ कॉलम्स, यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम। मैं बोल रहा हूँ सारा कुछ अवेलेबल है आपके पास, एवरीथिंग इज देयर ऑल ऑफ यू। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? यस बस सर। ये मैंने आपको दिखा दिया। माया एंड कंजन आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए, बाकी लोग जो है आप लोग को भी पता चल जाए कि हम लोग ऑफर क्या कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी मैं बना के दूंगा, टास्क मैं आपको दिखा के दूंगा कि कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ ह्यूमंगस टॉपिक, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखा जाएगा। फिर आता है आप लोग का मैथमेटिक्स, इसका भी बुक है गाइस, हाँ इसका आप लोग को देखें, आरसी हिबलर, वर्ल्ड्स बेस्ट बुक है, वर्ल्ड्स बेस्ट बुक माना जाता है इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का। तो आरसी हिबलर, आरके बंसल, ठीक है। चलो तो बुक भी देख लो। हाँ ये रहा, कहाँ गया, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आरसी हिबलर, ये भी आपको बुक मार्क्स के साथ मिल जाएगा, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग सब मिल जाएगा। तो आपको स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा, और मैं यहाँ से पढ़ के समझाता हूँ आप लोगों को।
सम एवरीथिंग, ये चीज़ ध्यान देना। इसमें यहाँ से पढ़ के समझाऊंगा, ये बुक आपके लिए अवेलेबल रहेगा आराम से, इसको कभी भी आप अप्रोच कर सकते हो। और ये बुक का दाम 12,000 या समथिंग है इन इंडियन मार्केट, अगर आप ओरिजिनल लेते हो तो, इंडियन एडिशन नहीं, ओरिजिनल एडिशन। तो मेरे पास ओरिजिनल एडिशन है guys, ये पूरा। फिर एक तो ये आरसी विलर हो गया, ये बुक भी अवेलेबल है। थ्योरी ऑफ मशीन्स भी अवेलेबल, सेंजल भी अवेलेबल, आर के राजपूत भी अवेलेबल, फाइन। एंड आपको आर के बंसल भी बोला है, तो आर के बंसल से आपको क्वेश्चन पेपर, आस्तु का क्वेश्चन पेपर बनेगा, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल विथ बुक मार्क्स अगेन। बुक मार्क्स रहेगा तो आप कहीं पे भी जा सकते हो पढ़ने के लिए। यहाँ से खाली हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे guys, पढ़ेंगे कुछ नहीं, ऑलवेज सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू गाइस, सारा चीज अवेलेबल करवाया गया है 6,000 रुपीज में। पीपल व्हेन हियर अबाउट दिस कि सर 6,000 रुपीज में आप ये चीज प्रोवाइड कर रहे हो, इट इज अनबिलीवेबल। हम लाइक हाँ, फॉर द स्टूडेंट्स वी हैव टू डू, वी शैल डू इट। ये तो आपको यहाँ पे हम लोग के पास है। उसके बाद हम लोग का प्रैक्टिस सेट्स भी है बहुत सारा, तो वी विल हैव दिस प्रैक्टिस सेट जो मैं आप लोग को भेज दूंगा सॉल्व करने के लिए, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस सेट, तो वर्क एंड हीट, ये सब आपको भेजा जाएगा गाइस, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे ऑल ऑफ यू, तो वी शैल सी। ठीक है, और गेट का प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलेगा। माया एंड खंजन, इज इट फाइन? ठीक है, साइड बाय यस सर। साइड चलेगा। आपको कहीं भी आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये सर गेट और काढणे तो केने का पढ़िम सर गेट और काढणे, अरे जी क्वेश्चन जी বস্তু তোমালোকৰ ইয়াতে দিছে ইন ইউনিভাৰ্চিটি, সেইটো বস্তুতে বস্তুৰ পৰাহে क्वेश्चन আহিব। যেনেকে লাষ্ট টাইম খঞ্জন এণ্ড माया, यू मस्ट हैव सीन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, देखा है ना आपने, है ना? यस सर। কেনে Yes, sir. কেনেকুৱা Yes. কেনেকুৱা क्वेश्चन আছিলে কোৱাচোন এবাৰ, हाउ वाज द क्वेश्चन? क्वाइट इजी इजी, सर। वेरी इजी, मैंने आई से कि वेरी वेरी इजी। मतलब आप लोगों को तो अलग अलग मेथड्स पढ़ाता है कॉलेज में कि हाँ ये मेथड से इनवर्स निकालो, इससे निकालो, तो वैसे करना पड़ता है, वहां तो कुछ मेंशन नहीं, सो इजी थिंग, गेट का क्वेश्चन देखा जाएगा वो भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, ये हो गया गेस, यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस। अब आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप लोगों को मैथमेटिक्स पार्शियल डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर लीनियर, सेकेंड ऑर्डर लीनियर फिर से आ गया आप लोग का, ये डिफ्यूजन वाइब्रेशन, अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये। ठीक है, फिर आता है प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत बड़ा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। हाँ, ये थोड़ा सा अलग पूछेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, डिस्क्रीट रैंडम, तो इसको भी मुझे पढ़ के आपको पढ़ाना होगा ऑल ऑफ यू, तो ये आप लोग को उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा गाइस। तो इसका कौन सा बुक दिया गया देखते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, रीना गर्ग, ठीक है, गर्ग एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, ओके, एंड एनपी बाली एंड ऑल, ये सब अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, सो बुक्स आर अवेलेबल, नो प्रॉब्लम इन दैट। जैसे कि यहाँ पे आपके पास जस्ट मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एस के दास, बी एस ग्रेवाल, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको जरूरत नहीं है। और आपका हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक और है, हाँ, ये किसका है देखते हैं, दिस हैज बीन डन बाय जॉन बर्ड, दिस इज ऑल्सो गुड, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसका कंटेंट में ही है, हाँ, एवरीथिंग इज देयर, यहाँ पे भी सब कुछ मिल जाएगा। तो बुक सब अपलोड कर दूंगा मैं आप लोगों को, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के। दिस थिंग्स विल सेल्फ सॉल्व न्यूमेरिकल्स फ्रॉम हियर आल्सो, आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, फिर ठीक है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ है यहाँ, एवरीथिंग इज डन। तो यस, वी शैल सॉल्व न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ऑल ऑफ दिस स्टफ। मैं मैथमेटिक्स का डील करवाऊंगा आप लोगों को, पहले ये 4 सब्जेक्ट डील किया जाए। आई विल डिजाइन एंड सेंड द टास्क टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान से सुनना, ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या फिर थ्योरी ऑफ मशीन, दोनों कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे गाइस हम लोग। यानी कि आप जिस दिन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे उस दिन थ्योरी ऑफ मशीन्स भी पढ़ोगे आप साथ में, या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी पढ़ोगे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? आई एम सेंडिंग द टास्क राइट अवे ऑल ऑफ यू। तो ये चीज रहेगा। लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का ये चीज पढ़ाया था गाइस यहाँ पे,
दिस थिंग्स आई हैव स्टार्टेड रिवाइजिंग, बट कंजन एंड माया आप लोग आज पहले पढ़ो। कल फिर से मैं 11 बजे सुबह क्लास लूंगा, बट आई विल टेक अ क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टुमारो, वेयर आई विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, जो आपको मैं करके दिखाऊंगा वर्क डन के ऊपर, जो आस्तु में आएगा। तो टुमारो आई विल सी यू गाइस अगेन। ये जो है पार्ट, जो स्ट्रेटेजी है एंड द टास्क दैट विल बी सेंड टू यू इन द ग्रुप्स, कैसे कैसे टास्क दिया जाएगा। टास्क हैज टू बी डन ऑन टाइम विदाउट डिलेज। जितना टाइम में बोला जाएगा उतना टाइम में करो। कीप मी अपडेटेड एंड वी शैल सॉल्व न्यूमेरिकल्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल डायरेक्शन, सब कुछ करेंगे गाइस। गेट, कोलिन डेलिमिटेड, इजरो, बार्क, डीआरडीओ, जितना से क्वेश्चन आया होगा सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, so I'll see you guys in the next class. Till then, take care all of you. Have a good day.